Hello friends, I am Dr. Satkala and today's topic is The Guide. The Guide is very interesting work by R.K. Narayan. The Guide, it was published in 1958 and it brought the Sahitya Akademi Award in 1960. It is the most important work by R.K. Narayan and The Guide. It is the very interesting work. In this lecture, I will explain its characters and its summary plot in an easy and simple way. First of all, characters are in this way. The main character is Raju. Raju, who is the protagonist and narrator of this story. इस कहानी का जो नरेटर है और प्रोटोगोनिस्ट है वो है राजू. राजू इसके अंदर मुख्य जो वक्ता है इसके अंदर और इसका मेन हीरो है. रोजी एक यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मार्को एंड शी इज द लव ऑब्जेक्ट ऑफ राजू. एंड आफ्टर during his dance performance she put her name Nalini. In the previous her name is Rosie, but during her performance she gave her name as Nalini. Marco Polo, who is the husband of Rosie and who is a scholar. Gafoor is a taxi driver of Marco and Rosie. Velen, a local from the village of Mangal in southern India, and Velen have a sister. The villagers of the Velenus village, the sage, a merchant who acts as Raju's creditor in Mangali, who gave credits to Raju for his soap. Mani, Raju's secretary. Mani is Raju's secretary who gave each and every information about Marco, Rosie and others to Raju. So these are the main characters. Raju, whose mother also there, Raju's mother, she is a traditional woman and her father died before some time. When the story starts, these are the relation. Raju is the protagonist. Rosie, Nalini, Raju love to Rosie and Rosie's husband Marco Polo and Raju's taxi driver who is Gafu. Velen here is a villager. Velen is sister, Raju's mother, Raju's uncle who is the brother of her mother. So these are the main characters. When the novel or the story starts, it was moving from present to past and past to present. This tells the story of Raju. This is the complete story about Raju and Nalini and Marco. Raju, who was born in Malgudi, a village, and he was a child of a shopkeeper and his a father who kept the shop, who run this shop, but after his death Raju have the responsibility of this shop and this shop was at the railway station. राजू जब ये कहानी शुरू होती है तो राजू के फादर की डेथ हो जाती है और रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेलवे के ऊपर उनकी शॉप है जो उसके फादर चलाते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद पूरा जो भार था वो किसके ऊपर आ गया था? राजू के ऊपर. बट राजू हैव नॉट सो मच इंटरेस्ट टू रन दिस शॉप. उसका ये शॉप चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसका नहीं था. उसका इंटरेस्ट किस में था? वो देख रहा था कि वहाँ पे जो विजिटर्स आते थे मालगुड़ी साइट देखने के लिए, तो उसका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो किस में बढ़ने, किसकी तरफ चलने लगा? उसकी मालगुड़ी साइट्स की तरफ चलने लगा. तो राजू जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक वो शॉपकीपर नहीं रहा है. क्या करने लगा? ही टेक्स टू शोविंग द मैनी विजिटर्स हु अराइव एट द रेलवे स्टेशन द साइट्स ऑफ मालगुड़ी. बहुत सारे विजिटर्स दो मालगुड़ी देखने के लिए, साइट देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ उसकी तरफ इंटरेस्ट वो लेने लगा. एंड आफ्टर दैट ही बिकम ए टूरिस्ट गाइड. क्या बन गया? टूरिस्ट गाइड.
Raju often resorts to exaggerations and fabricated tales to impress his customers. और कई बार वो क्या करने लगा दिखाने के लिए, अपने जो भी वहाँ पे विजिटर्स आते थे उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए वो थोड़ी सी फैब्रिकेटेड एग्जीग्रेटेड कहानियाँ बनाने लगा, और इस तरीके से उसकी रेपुटेशन है वो बढ़ गई. एंड आफ्टर दैट ही नोन एज रेलवे राजू. और धीरे धीरे वो किस नाम से जाने लगा, रेलवे राजू के नाम से. And after some time, Raju meets to a man, Marco Polo, who was a serious, studious academic of ancient civilization, who arrives in Malgudi to research the cave paintings and temples scattered around the town surroundings. कुछ दिन बाद उसकी भेंट मार्को पोलो से होती है. मार्को पोलो जो है काफ़ी सीरियस जो है एक स्कॉलर होता है जो रिसर्च करना चाहता है. किसके ऊपर रिसर्च? पेंटिंग, केव पेंटिंग्स जो हैं, टेम्पल्स जो हैं टाउन के चारों ओर जो फैले हुए जो टेम्पल्स वगैरह थे, केव जो पेंटिंग थी उसके ऊपर वो, तो उसकी भेंट उससे हुई. एंड मार्को पोलो इंगेज राजू सर्विस एज ए टूरिस्ट गाइड टू नेविगेट दिस मैनी साइट्स. और मार्को पोलो को ज़रूरत थी ऐसे पर्सन की जो सारी साइट्स उसको दिखा सके. एंड राजू हु वाज अप्रोप्रिएट फॉर दैट. Raju's impulsive dislikes of Marco Polo, who is haughty and domineering. थोड़ा सा वो हटी था, थोड़ा सा डोमिनेटिंग था, तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. After some time, he is meeting with Rosie, who arrives in the town shortly after her husband. अपने हस्बैंड के थोड़े टाइम बाद ही वहाँ पे आती है. राजू जो है काफ़ी इम्प्रेस होता है राजे से और जो है उसकी इंडियन लुक से. An Indian woman trained in the art of Indian classical, or Rosie belongs to a classical dance family. When Raju takes Rosie to visit a snake charmer and watches her as she imitates the snake's movements. और राजू एक दिन जो है मार्को पोलो कहीं गया हुआ था, तो राजू जो है रोजी को एक स्नेक चार्मर का जो गेम दिखाने के लिए लेके गया. जो जैसे स्नेक जो है डांस कर रहा था उसकी मोमेंट्स के साथ रोजी जो है वो भी वैसे ही मोमेंट्स कर रही थी, सेम वे से. तो राजू जो है वो समझ गया सी बिलोंग्स टू डांस फैमिली, सी बिलोंग्स टू क्लासिकल डांसर. तो उसके बाद जो है रोजी जो है उसने सारा कुछ राजू को बताया ये सब. और जो राजू जो है कैसे उसको उसके प्रति डिवोट होता गया और उसकी केयर एज ए हस्बैंड के रूप में उसने करनी शुरू कर दी. और कुछ ही दिन बाद उसको राजू जो है केम टू नो दैट द मैरिज रिलेशंस बिटवीन रोजी एंड मार्को दैट आर नॉट गुड. द कपल इज़ लायबल टू बाउट्स ऑफ क्वारलिंग. दे आर क्वारलिंग, वो लड़ाई करते रहते थे. विच कैम टू बी हैड एट मम्पी हिल्स. एक बार मम्पी हिल्स में जो मालगुड़ी के आउटसाइड थी वहाँ पे भी उसने देखा कि जो लोकल जो पेंटिंग थी मार्को जो है वो जो जाना चाहती थी, लेकिन मार्को उसको लेकर के नहीं गया. राजू जो है एज ए गाइड के रूप में वहाँ पे लेके जाता है और किस प्रकार से दोनों के बीच में काफ़ी जो है लड़ाई हो जाती है. लेकिन रोजी जो है वो क्लियर कर देती है कि आई डोंट वॉन्ट टू लव टू राजू, आई लव टू माई हस्बैंड, दिस इज़ मैटर बिटवीन अस, ये हमारे बीच का मामला है. और उसको कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो यहाँ अकेला और तुम जाओ. उसके बाद जो है राजू रिटर्न्स टू मालगुडी एंड ही वॉज सो मच डिप्रेस्ड बाय रोजी's absence here at this place. And after 1 month Raju get that Rosie came to Raju's house to live here. रोजी जो है वो कहती है कि मैं मार्को को छोड़ करके आ गई हूँ और मैं अब आपके साथ में यहाँ पे रहूँगी. तो राजू की जो मदर है शी इज़ ट्रेडिशनल वुमेन, वो एक ट्रेडिशनल वुमेन है. एट फर्स्ट से वो सरप्राइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द सिंगल यंग वुमेन, बट शी एक्सेप्ट हर प्रेजेंस इन द हाउस फॉर द टाइमिंग. थोड़े से टाइम के लिए कि ठीक है, राजू मनाता है कि कुछ टाइम के बाद चली जाएगी. तो राजू की मदर जो है वो एक ट्रेडिशनल वुमेन है, लेकिन फिर भी वो मान गई कि कुछ टाइम के लिए जो है वो रहेगी. आफ्टर दैट राजू रोजी जो है सारा कुछ बता देती है कि मैं कैसे मार्को को मैं छोड़ करके आ गई. राजू जो है वो खुशी से पागल हो जाता है जब उसको ये बात पता चलता है कि मैं उसके साथ ही रहूँगी और मैं मार्को को जो है छोड़ करके आ गई. आफ्टर दैट राजू ट्राई टू अनक्रेज एंड स्पोर्ट टू डिवोट टू डांस टू रोजी. वो डिवोट करने के लिए कि अब तुम अपना पूरा जो डिवोशन है वो किसको दो, तुम डांस को दो. डांस के लिए डेली जो है वो घर के अंदर प्रैक्टिस करने लगी. धीरे धीरे जो है इट वॉज नॉट
Raju's mother, she was feeling that it was not fine, it was not okay. वो महसूस कर रही थी। और आफ्टर दैट जो बाहर का जो एनवायरनमेंट था, जो सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज नॉट सुटेबल टू राजू's मदर टू टू गिव परमिशन टू स्टे रोजी एट हर हाउस। उसके घर में परमिशन दे, ये नहीं तो राजू की मदर जो है मना कर देती है जब उसको पता चल जाता है कि सी इज़ अ डांसर। एंड आफ्टर दैट सी थिंक्स दैट सी बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट, कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं। और उधर जो है वो मना करती है जाने के लिए। राजू जो है वो अपनी माँ को नहीं उसको जाने के लिए बोलने देता कि रोजी जो है वो घर छोड़ करके जाए। उस दूसरी तरफ जो है राजू का जो मर्चेंट है जिससे पैसे लिए थे, वो बार बार जो फोर्स कर रहा है, कोर्ट में जाता है कि उसका जो डेब्ट उसने लिया था, जो भी उसने ऋण लिया था, वो उसको वापस दे। दूसरी तरफ राजू का जो अंकल है, मदर्स ब्रदर है, अपीयर्स इन द, वो भी घर में आता है, इंसल्ट राजू रोजी एंड सेड टू रोजी टू लिव एट वंस माई सिस्टर हाउस एंड डिमांड्स दैट रोजी लिव, कि तुम अभी चले जाओ। राजू जो है डिफाइंस टेक्स रोजी असाइड एंड इन रिस्पॉन्स हिज मदर पैकअप हर थिंग्स एंड डिपार्ट्स विद हर मदर। और दूसरी साइड जो है रोजी की साइड लेता है राजू अपनी मदर की, अंकल की बजाय। और जो है तो उसकी मदर जो है वो कहती है या तो रोजी घर से जाएगी या फिर मैं जाऊंगी। तो रोजी की मदर जो अपना सामान पैक करती है और वो घर छोड़ करके अपने ब्रदर के साथ में चली जाती है। Throughout Rosie unaware of the extent of Raju's financial state, राजू के फाइनेंशियल स्टेट से अनअवेयर थी, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है। और एक दिन सी डिक्लेयर्स दैट आई एम रेडी टू परफॉर्म एट पब्लिक प्लेस, कि मैं पब्लिक प्लेस पे रेडी हूँ। तो इस प्रकार से उसका जो नेम है वो क्या रख दिया जाता है, नलिनी नेम जो है दैट इज़ अप्रोप्रिएट पुट एट द फॉर हर परफॉर्मेंस। उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जो नेम था वो नलिनी जो है रख दिया गया। आफ्टर दैट रोजीज फर्स्ट इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। एंड राजू एबल टू टेक क्रेडिट फॉर ऑर्चरेस्टिंग हर एस्ट्रोनॉमिकल राइज टू फेम। एस्ट्रोनॉमिकल जो भी चीज़ें थी वो भी उसने खरीद ली उसकी और फेम बढ़ाने के लिए, और उसके ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता गया। और इस प्रकार से दोबारा से बहुत पैसे कमा के वो एक बार फिर से दोबारा से मैनेजर बन गया। एंड ही साइन मैनी, उसने बहुत सारे साइन कर दिए इसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए, बगैर रोजी से पूछे उसकी। और अब क्या हो गया, बहुत सारे मैनी पीपल्स, मैनी डांसर्स, ट्रेडिशनल डांसर्स, दे वांट टू मीट टू नलिनी रोजी से मिलने के लिए बहुत सारे। और उसका जो शेड्यूल था वो काफ़ी जो है टाइट शेड्यूल हो गया, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। और राजू जो है अब थोड़ा सा jealous फील करने लगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिस्ट फ्रेंड एंड ऑल दिस सी नलिनी सी वॉज रिमेन इन बिजी इन टॉक टू विद हर आर्टिस्ट फ्रेंड्स एंड इन हर प्रैक्टिस। एंड इन दिस Raju does this in spite of sensing that dangerous dissatisfaction is developing in Rosie। रोजी के अंदर भी एक, जब उसको पता चलता है कि एक दिन जो है अनएक्सपेक्टेड पार्सल आता है और उस पार्सल के अंदर बुक होती है जो किसको, मार्को की होती है, रोजी's हस्बैंड, जो पब्लिश की है रिसर्च ऑन द क्यू पेंटिंग्स के ऊपर मालगुड़ी में। राजू जो है हाइड्स द बुक फ्रॉम रोजी से बुक को छुपा लेता है। और उसको आफ्टर दैट नलिनी और रोजी गोट दिस न्यूज़ फ्रॉम समवन एल्स एंड सी रीड दैट न्यूज़ इन ए न्यूज़पेपर एंड सी बिकेम सो मच एक्साइटेड व्हेन सी रीड्स अबाउट मार्कोस बिग इन ए मैगजीन। नॉट ओनली दैट बट रोजी क्वाल्स विद राजू व्हेन सी डिस्कवर दैट मार्कोस बुक हैज़ बीन सेंट टू देम बट दैट राजू हैज़ हिडन इट फ्रॉम हर। और ये भी इस बात पे लड़ाई भी करती है रोजी जब उसको पता चलता है कि मार्को ने उसके लिए बुक भेजी थी और उसने उसको छुपा लिया। उसके बाद जेलस जो है, रोजी का जेलस जो है वो उस राजू के प्रति और अपने हस्बैंड के प्रति जो प्यार था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और उससे दूसरी तरफ जो है एक लेटर जो है वो आता है और राजू वो लेटर भी छुपा लेता है और ख़ुद जो है रोजी के साइन करके उसको भेज देता है। वेल्यूबल जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसमें, तो लेटर को शेयर नहीं करता रोजी से। राजू फोर्ज हर सिग्नेचर ऑन द फॉर्म सेंट बाय द लॉयर्स होपिंग टू अक्वायर द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी विदाउट रोजीस नॉलेज के बगैर ही उसको साइन करके भेज देता है। लॉन्ग डिसीट इज़ एक्सपोज, लेकिन वो डिसीट कभी ना कभी तो जो धोखा उसने दिया है, धोखाधड़ी किया, जो फोर्जरी किया है उसको
कभी ना कभी तो वो एक्सपोज होगा। तो वन डे परफॉर्मेंस वॉज गोइंग ऑन एंड पुलिस सुपरिटेंडेंट कैम एंड अरेस्ट टू राजू फॉर forgery. Raju is forced to disclose all to Rosie. She is devastated, particularly upon discovering that in spite of her tireless dancing, Raju has been reckless with the immense wealth they have accumulated through her engagements. तो रोजी को काफ़ी झटका लगता है। राजू को 2 इयर्स के लिए जेल में ले लिया जाता है, भेज दिया जाता है 2 साल के लिए। और रोजी जो है वो अब छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। राजू को अभी नहीं पता होता। राजू जब जेल से आता है तो उसको पता चलता है कि सारा कुछ जो है रोजी छोड़ करके अब वो ना ही मार्को के साथ में रहती है और ना ही वो राजू के साथ में रहना चाहती है, वो सब कुछ छोड़ करके चलेगी। एंड आफ्टर व्हेन राजू रिलीज फ्रॉम प्रिजन, राजू थिंक्स दैट व्हेन ही शुड गो नाउ। राजू शेड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर नियर अ स्मॉल विलेज। अब राजू सोच रहा है कि प्रिजन से जब छूट करके आए कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो एक रिवर के पास में एक नदी के किनारे बैठ जाता है। एक स्ट्रेंजर जो है वहाँ पे आता है। स्ट्रेंजर कौन होता है? वेलन। वेलन होता है। वेलन जो है और उसकी वेलन की सिस्टर होती है। वेलन अपनी सिस्टर के लिए एक शादी करने के लिए, मैरिज के लिए एक लड़का ढूंढता है, लेकिन वेलन की सिस्टर मना कर देती है उसे शादी करने के लिए। तो वेलन जो है राजू को मनाता है एज ए होली मैन समझ करके, उसको बोलता है कि प्लीज़ कन्विंस माई सिस्टर दैट शी शुड मैरी टू दैट मैच ही हैज़ अरेंज्ड फॉर हर। राजू इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी ही थिंक्स दैट ही शुड हेल्प टू दैट पर्सन। और आफ्टर वेलन ब्रिंग्स हिज सिस्टर टू विजिट राजू, द सिस्टर एक्सेप्ट्स द मैच अरेंज्ड फॉर हर बाय हर ब्रदर। वेलन एंड हिज फैमिली क्रेडिट दिस सक्सेस टू राजू। वेलन की सिस्टर खुश हो जाती है, मान जाती है, और वेलन की फैमिली पूरा क्रेडिट राजू को देती है। ये जो बात है पूरे परिवार में, पूरे विलेज में फैल जाती है, और पूरे सारे विलेजर्स जो हैं वो सोचते हैं कि ही इज़ अ होली मैन, कि वो होली मैन है। लेकिन राजू जो है सारी बातें अपने उसको वेलन को उसको दोस्त बना लेता है, फ्रेंड बन जाता है, सारी बातें बता देते हैं, अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ बता देता है कि उसका पास्ट जो है कैसा क्या था। लेकिन जो वेलन है वो वैसा ही उसके ऊपर बिलीफ, वैसा ही उसका जो एटीट्यूड है उसके प्रति, उसका जो नज़रिया, उसका जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो सेम वैसा ही रहता है जब वो पहले था। अब विलेजर्स जो हैं गांव में एक बार जो है बारिश नहीं होती, ड्राट आ जाता है, और राजू जो है अनविटिंगली ड्रॉन इनटू अंडरटेकिंग ए 2 वीक फास्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजर्स टू ब्रिंग अबाउट रेन्स। अब ये डिसाइड होता है कि राजू जो है 2 वीक्स का फास्ट करेगा विलेजर्स की रेन लाने के लिए। तो राजू जो है पहले तो ऐसे सोचता, उसके बाद ये सोचता है कि जो वेलन ने इतना मतलब इतने दिनों से उसके पास कोई जगह नहीं थी कहीं भी जाने के लिए, फिर भी वो जो है गांव वाले सुबह से हम दोनों टाइम उसको अच्छे से खाना खिलाते थे, उसको अच्छे अच्छे मतलब फ्रूट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह उसको देते थे, इतना उसका केयर करते थे, तो उसके लिए वो फास्ट करना चाहिए। आफ्टर दैट वो फास्ट करना रहता है। उसके बाद जब विलेजर्स को पता चलता है कि स्वामी जो है, उसका नाम क्या रख दिया गांव वालों ने, स्वामी, कि स्वामी जो है वो फास्ट रखा है, तो उसके बाद जो है सभी जो गांव वाले हैं उसकी तरफ मूव करते हैं, उनका फेथ जो है और भी बढ़ जाता है, और सारे पूरे उसमें न्यूज़ जो है स्वामी इज फास्ट स्प्रेड्स फार एंड वाइड, पीपल कम टू द विलेज बाय द थाउजेंड्स टू मीट द हीरोइक होली मैन एंड जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ पीपल अराइव टू रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट। न्यूज़ वाले आ जाते हैं होली मैन को देखने के लिए, जो गाँव वाले हैं सभी लोग जो हैं आ जाते हैं। फाइनल डे जब होता है फास्ट का, उस दिन तक राजू जो है बहुत वीक हो जाता है। ही इज़ अनेबल टू डिसेंड टू द रिवर, वो रिवर तक भी नहीं जा पाता। जैसे बाकी दिन वो थ्रू आउट द फास्ट, जितने दिन फास्ट के प्रत्येक दिन वो रिवर तक जाता था जो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, तो वो वेलन की हेल्प से वहाँ तक जाता है, इतनी एनर्जी जुटाता है कि रिवर तक वहाँ तक जाए, और वहाँ पे जा कर के वो अनकॉन्शियस हो जाता है और थोड़ा थोड़ा है ना, और हाँ होरिजन की तरफ देखता है, और टेल्स टू वेलन दैट ही फील्स रेन कमिंग ओवर द हिल्स, और वो कहता है इस जो है मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बारिश जो है आ रही है। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द गाइड। इस प्रकार से इस स्टोरी का अंत होता है। लास्ट में जो है उसकी डेथ होती है, नहीं होती, दिस इज़ नॉन, इसका पता नहीं है कि क्या इसमें कहानी के लास्ट में जो राजू है उसकी डेथ हो जाती है, नहीं, लेकिन वो ऐसा ज़रूर फील करता है कि रेन जो है वो आ रही है। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द गाइड।
and after that Raju became guide, and after that became Swami. And in this way, this is the interesting story. May you like it. If you like, please like, share and subscribe. Thanks a lot.